Hello students, so in the previous lecture we were talking about the C3 plants and the C2 plants, and in this lecture we would start talking about the C4 plants. Okay, so we can term the C4 plants as the evolved plants because C3 plants में जब CO2 का proportion काफ़ी कम हो जाता था, ऑक्सीजन का proportion बढ़ जाता था, तो एक नया pathway follow होने लग जाता था, that was the C2 pathway. और उस C2 pathway की वजह से there was loss of energy, the productivity of the plant used to be decreased. So to cope up with this problem, the plants evolved and they developed a new pathway that is termed as the C4 pathway. ठीक है, so C3 pathway हो चुका है, C2 pathway हो चुका है and C4 pathway आज हम डिस्कस करेंगे. So because of the low productivity which was caused due to C2 pathway in the plants evolved and they developed a new pathway that is termed as the C4 pathway. ठीक है, so C4 pathway नाम तो आपको पता चल गया होगा. Why am I terming it as the C4 pathway? C3 pathway क्यों बोला था? C3 pathway इसलिए बोला था कि जो first stable compound form होता है that is a 3 carbon compound. ठीक है, that was phosphoglyceric acid. C2 pathway इसलिए बोला था क्योंकि जो compound form होता था that is the 2 carbon compound that is phosphoglycolic acid. C4 pathway इसलिए कहा जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा that is going to be oxaloacetic acid which is a 4 carbon compound. ठीक है, so we term it as C4 pathway कहा जाता है या फिर we can also term it as Hatch and Slack pathway. ठीक है, we can also term it as what do you call cooperative photosynthesis. Cooperative इसलिए यहाँ पे दो cells participate करते हैं for the process of fixation or for the process of photosynthesis. So this is also termed as cooperative photosynthesis and can also be termed as dicarboxylic acid cycle. Dicarboxylic acid cycle. ठीक है, सो जो आप अगर कोई रेफरेंस बुक रेफर करते हो तो कहीं पे ये नाम आ सकता है, कहीं पे ये नाम आ सकता है, कोई भी नाम आ सकता है. इसलिए मैंने चारों नाम लिख दिए. दैट इज C4 pathway, Hatch and Slack pathway, cooperative photosynthesis and dicarboxylic acid cycle. ठीक है, now when a scientist known as Koschek was studying sugarcane plant, observed in sugarcane plants. Normally अभी तक क्या पता था कि यार there is the formation of 3 carbon compound, but when Koschek observed in sugarcane plant instead of 3 carbon compound, instead of 3 carbon compound, there was formation of 4 carbon compound. Instead of 3 carbon compound, there was formation of 4 carbon compound. ठीक है, so तब जाके पता चला कि there are some plants which form oxaloacetic acid which is a 4 carbon compound. Oxaloacetic acid which is a 4 carbon compound. ठीक है, किसने ऑब्जर्व किया था? The name of the scientist is Koschek. ठीक है, कौन से प्लांट्स में? शुगर केन प्लांट्स में. So instead of a 3 carbon compound, there's formation of 4 carbon compound. ठीक है, फिर further he came to know that it is observed in several plants observed in
several tropical plants, ठीक है, ऑब्जर्व इन सेवरल ट्रॉपिकल प्लांट्स में आपको देखने को मिल सकता है। ओके, 18 फैमिलीज, उसमें 15,000 स्पीसीज, I'm sorry, 1500 species of monocots and dicots में आपको C4 pathway देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑब्जर्व इन सेवरल ट्रॉपिकल प्लांट्स, ओके, 18 डिफरेंट फैमिलीज, 15,000 स्पीसीज, I'm sorry, 1500 स्पीसीज एंड मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स में आपको ये देखने को मिल सकता है। कौन सा पाथवे? द C4 पाथवे। ठीक है, सम ऑफ द एग्जांपल्स आर, वी कैन टेक मेज, एग्जांपल्स आर मेज, amaranthus, सारी प्लांट्स, मेज है, amaranthus है, पैनिसिटम, ठीक है, शोरगम, एंड शुगर केन। ठीक है, सो दिस आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? C4 पाथवे देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द C4 पाथवे, जैसे मैं बता रहा हूं, दिस इज द इवॉल्व्ड पाथवे। इवॉल्व्ड क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो C3 पाथवे में एक जो रुबिस्को वाला प्रॉब्लम था कि रुबिस्को ऑक्सीजन को फिक्स करने लग जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था? फोटो रेस्पिरेशन। C4 पाथवे में कभी भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि C4 पाथवे क्या है? इवॉल्व्ड पाथवे, इवॉल्व्ड प्रोसेस है, अपडेटेड प्रोसेस है। तो C4 पाथवे में कभी भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए ही प्लांट ने C4 पाथवे को डेवलप किया। सो देयर इज गोइंग टू बी नो फोटो रेस्पिरेशन। अब क्यों फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, क्या सेटअप है, तो मैं यहां पे मेंशन कर ही देता हूं। नो फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, सो व्हाट is available in a C4 plant that is avoiding photo respiration? सेटअप क्या है C4 प्लांट का कि उसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है। तो लेट्स लुक एट द सेटअप। एग्जांपल्स मेज, amaranthus, पेनिसिटम, शोरगम एंड शुगर केन में आपको C4 पाथवे दिखेगा, याद रखना है। So when we look at the leaf of a C4 plant, or let's say looking at the leaf of a maize or a sugar cane or a sorghum, we find a setup. Let's say this is the leaf, this is a section of a leaf. And let's say these are the bundle, I'm sorry, this is the vascular bundles. Xylem and phloem। ठीक है, इसके सराउंडिंग में there is arrangement of bundle sheath cells। There are layers of it। ठीक है, there are layers of it। और बंडल शीट के सेल्स के ऊपर there is arrangement of another cell that is the mesophyll cells।
और इसको कवर कौन कर रहा है? मेसोफिल सेल जो आपको लीफ में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज अ टिपिकल सेटअप विच इज ओनली अवेलेबल इन द प्लांट शोइंग C4 पाथवे। तो बाहर की तरफ जो अरेंजमेंट है दैट इज ऑफ द मेसोफिल सेल, और अंदर की तरफ जो अरेंजमेंट है दैट इज ऑफ द बंडल शीट सेल। सो देयर इज मेसोफिल सेल एंड देयर इज द बंडल शीट सेल, और अंदर की तरफ क्या है? अंदर की तरफ देयर इज वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल मतलब xylem and phloem. Xylem and phloem. So this is a particular setup which is observed in a C4 plant. ठीक है, clear है? So now let's put a difference between the mesophyll cell and the bundle sheet cell का एक difference ले लेते हैं so that आपको थोड़ा clear हो जाए। और ये लीफ का मैंने स्ट्रक्चर बताया था, लीफ के अंदर, बिकॉज जो फिक्सेशन होगा वो लीफ के अंदर होगा। So if we put a difference between the bundle sheet cells and the mesophyll cells, तो what do we observe? तो यहाँ पे जो मेसोफिल सेल होते हैं इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या होता है? ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट होता है। कौन सा होता है? ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट, मतलब एक के ऊपर एक स्टैकिंग होती है। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर इस तरीके से प्रेजेंट है तो यहाँ पे अप्रेस्ड रीजन भी है, और दूसरा कौन सा रीजन होता है? विच इज नॉन अप्रेस्ड। आपने आगे वाले लेक्चर में देखा था। तो यहाँ पे दो फोटो सिस्टम होगी, फोटो सिस्टम 1 are observed यहां पे, बिकॉज देयर इज ए ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट तो सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, अब फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 अगर मैं लिख रहा हूं तो, बट ऑब्वियसली यहां पे एक चीज तो और देखने को मिलेगी, दैट इज नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक ईटीएस। नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक ईटीएस दोनों आपको ऑब्जर्व होगा यहां पे सिर्फ साइक्लिक ईटीएस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? साइक्लिक ईटीएस। ठीक है, दूसरी बात जो आपको यहां पे देखने को मिलेगी, बिकॉज यहां पे नॉन साइक्लिक ईटीएस परफॉर्म होगा तो यहां पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर देखने को मिलेगा मेसोफिल सेल्स में। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर देखने को मिलेगा, दैट इज, मैं फिर से यहां पे लिखता हूं, H+, 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 O2। ठीक है, ये सेटअप आपको देखने को मिलेगा। फोटोलाइसिस यहां पे ऑब्जर्व में नहीं आएगा,
बिकॉज यहाँ पे सिर्फ साइक्लिक ईटीएस, और साइक्लिक ईटीएस में फोटोलाइसिस नहीं होता है। दूसरी जो चीज आपको देखने को मिलेगी दैट इज स्टार्च। का डिपोजिशन जो है आपको यहाँ पे देखने को, आई एम सॉरी, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द एंजाइम रुबिस्को। रुबिस्को यहां पे प्रेजेंट नहीं होता है, बट बंडल शीट सेल में रुबिस्को प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? तो यहां पे एक नया एंजाइम प्रेजेंट है विच इज नोन एज पेप्को या फिर पेप्केस। पेप्को प्रेजेंट, और यहां पे पेप्को एब्सेंट। ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो मेसोफिल सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बता दी है, बंडल शीट सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बता दिया आपको। क्या ग्रैनुलर क्लोरोप्लास्ट है, एक ग्रैनुलर क्लोरोप्लास्ट है जिसकी वजह से फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 बोथ आर ऑब्जर्व्ड। यहाँ पे ओनली फोटोसिस्टम 1 इज ऑब्जर्व्ड। ये दोनों फोटोसिस्टम है मतलब नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक ईटीएस परफॉर्म होगा। यहाँ पे सिंगल फोटोसिस्टम है मतलब साइक्लिक ईटीएस ही परफॉर्म होगा। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यहीं पे ऑब्जर्व होगा मेसोफिल सेल में, यहाँ पे एब्सेंट होगा। यहाँ पे दो एंजाइम प्रेजेंट है, वन इज गोइंग टू बी रुबिस्को इज गोइंग टू बी प्रेजेंट हियर, आई एम सॉरी रुबिस्को इज गोइंग टू बी एब्सेंट हियर एंड पेप्को इज गोइंग टू बी प्रेजेंट, और यहाँ पे रुबिस्को प्रेजेंट है और पेप्को एब्सेंट है। ठीक है, पेप्को जो एंजाइम है या फिर पेप्केस जो एंजाइम है, इट ओनली फिक्सेस CO2। रुबिस्को का क्या था, रुबिस्को CO2 को भी फिक्स करता था और ऑक्सीजन को भी फिक्स करता था, बट पेप्को ओनली फिक्सेस CO2। ये बात आप दिमाग में बिठा लो। डन, सिंपल एंड इजी। ओके, लेट्स पुट सम मोर पॉइंट्स अबाउट द बंडल शीट सेल्स। तो बंडल शीट सेल्स दे आर लार्ज साइज, thick walls and intercellular space is absent. They are large size, thick walls, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होने की वजह से जो गैसेस है अंदर से बाहर नहीं जा पाएगी। द गैसेस आर नॉट गोइंग टू लीक आउट ऑफ द सेल बिकॉज इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, दैट इज एब्सेंट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं गैसियस एक्सचेंज भी क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी एब्सेंट। ठीक है, compared to the mesophyll cell, the bundle sheet cells has large number of chloroplast. ठीक है, and the size of the chloroplast is also bigger. Size of the chloroplast is also bigger. ठीक है, and जैसा आपने बनाया था, there are several layers of the bundle sheet cells. Several layers of bundle sheet cells are observed. ठीक है, so these are some of the characteristics of the bundle sheet cell जो आपको याद रखनी है। Large size, thick walls, intercellular space absent, so gaseous exchange is absent, large number of chloroplasts are observed, size of chloroplast is bigger, several layers of bundle sheet cells are observed. ठीक है, so now let's move ahead and let's talk about how does it work, how does the C4 pathway function.
तो यहाँ पे कौन से दो सेल्स अपने वी टर्म इट एज द कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस। कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस क्यों? क्योंकि दो सेल्स कोऑपरेट कर एक दूसरे के साथ। वन इज द बंडल शीट सेल, अनदर इज द मेसोफिल सेल। इसलिए आप बोलोगे दोनों के बीच में कोऑपरेशन है। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है बंडल शीट सेल का एंड द मेसोफिल सेल का, it is termed as Cran's anatomy. That setup is known as Cran's anatomy. I found this on the web. बोर्ड छोटा है थोड़ा सा। Okay, so these are two cells. Okay, this is one of the cell और उसी के साथ एक नीचे की तरफ जो सेल अटैच्ड है दैट इज ए बंडल शीट सेल। और यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके पास में? वेस्कुलर बंडल्स आ जाएंगे। ठीक है, दिस अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज नोन एज क्रैन्स एनाटॉमी। और दोनों सेल एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ दिस space that is known as plasmodesmata. It is known as plasmodesmata. ठीक है, तो यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। ये वाला कौन सा सेल? दिस इज दी मेसोफिल सेल एंड दिस इज दी बंडल शीट सेल। ठीक है, और यहाँ अंदर की तरफ क्या आ जाएगा? वेस्कुलर बंडल्स आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे किस तरीके से C4 पाथवे को फॉलो किया जाएगा? So, but obviously CO2 अंदर आएगा। CO2 is only allowed from the mesophyll cell, bundle sheet cell में से तो आ नहीं सकता है, क्योंकि बंडल शीट सेल के ऊपर वाला जो लेयर है दैट इज द मेसोफिल सेल, दैट इज एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर। तो वो क्या करेगा? CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। ये जो CO2 है ये बाइंड करता है वाटर से, विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द मेसोफिल सेल्स एंड फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। किस चीज का फॉर्मेशन करता है? It forms carbonic acid, that is H2CO3. ठीक है, that is H2CO3. This H2CO3 binds with the substrate. The substrate is PEP. The substrate is PEP, that is phosphoenol pyruvate. यहाँ पे substrate कौन है? आगे वाले केस में आपने पढ़ा था सबस्ट्रेट कौन था? इट वाज रुबिस्को, इट वाज RUBP। यहाँ पे सबस्ट्रेट कौन है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इज द सबस्ट्रेट। तो ये दोनों चीजें जब बाइंड होगी ओके, PEP and H2CO3 when they bind, the result in formation of a 4 carbon compound that is oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid क्या बोलेगा उसको? OAA. How many carbon does it have? It contains 4 carbon. It contains 4 carbon. और एंजाइम कौन सा काम में आया? तो एंजाइम यहाँ पे जो काम में आया दैट इज पेप्को या फिर पेप्केज। The enzyme which is used is पेप्केज। ठीक है, तो पेप्केज ने यहाँ पे CO2 को फिक्स किया सबस्ट्रेट के साथ और जो प्रोडक्ट मिला दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। दिस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड अंडरगोज रिडक्शन। It undergoes with the help of the enzyme
malate dehydrogenase. With the help of the enzyme malate dehydrogenase, it undergoes what? It undergoes the process of reduction. ठीक है, तो रिडक्शन अगर करना है तो आपको हाइड्रोजन देना पड़ेगा, और हाइड्रोजन कहां से आएगा? सो हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी डोनेटेड बाय NADH. NADPH सा हाइड्रोजन लेगा और मिलेगा NADP प्लस. ठीक है, सो जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का रिडक्शन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, तो जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का नाम है मैलिक एसिड. क्या नाम है? मैलिक एसिड. कितने कार्बन है मैलिक एसिड के पास? तो मैलिक एसिड के पास 4 कार्बन ही. कितने कार्बन है? 4 कार्बन है मैलिक एसिड के पास. Now this malic acid from the mesophyll cell is transported to कौन सा सेल है? बंडल शीट सेल के पास इसे ट्रांसफर किया जाएगा. And this malic acid undergoes the process of decarboxylation. मतलब जो CO2 को ट्रैप करके मैलिक एसिड बंडल शीट सेल में लेके आया था, वो मैलिक एसिड का अब डीकार्बोक्साइलेशन किया जाएगा. मतलब उसमें से CO2 को निकाल लिया जाएगा. ठीक है, तो जब CO2 को निकाल लिया जाएगा और उसी के साथ इसको क्या किया जाएगा? देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ मैलिक एसिड बीइंग डन. मतलब हाइड्रोजन भी आप बाहर निकालोगे, तो क्या क्या हो रहा है? यहां से डीकार्बोक्साइलेशन हो रहा है. तो CO2 is moving out. ठीक है, उसी के साथ क्या हो रहा है? there is formation of NADP प्लस से क्या बनेगा? हाइड्रोजन आपने बाहर निकाला, मतलब NADPH का फॉर्मेशन होगा. NADPH का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, CO2 बाहर आ गया. ओके, तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज नोन एज पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, क्योंकि एक का CO2 यहां से निकाल लिया. ये CO2 किस काम में आने वाला है? ये CO2 परफॉर्म करेगा केल्विन साइकिल. क्या परफॉर्म करेगा? जो केल्विन साइकिल आपने पढ़ी थी C3 पाथवे में, वही केल्विन साइकिल यहां पे भी परफॉर्म की जाएगी. C3 पाथवे में आपने क्या देखा था? सीधा CO2 जो आता था वो केल्विन साइकिल परफॉर्म करता था. यहां पे CO2 पहले बनाएगा, पेप के साथ बाइंड करके बनाएगा ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, फिर उसका रिडक्शन होगा, मैलिक एसिड बनाएगा, और वो मैलिक एसिड CO2 को अंदर डिलीवर करेगा. क्यों ऐसा हो रहा है यहाँ पे? बिकॉज जो पेप्केस है ये एक ऐसा एंजाइम है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करता है. मतलब अगर ऑक्सीजन अंदर आ भी जाता है तो पेप्केस बाइंड नहीं करेगा, वो सिर्फ बाइंड करेगा CO2 के साथ. इट इज ओनली गोइंग टू बाइंड विद CO2. अगर रुबिस्को यहां पे होता तो रुबिस्को क्या करता? ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता था. बट इसीलिए आपने क्या किया? जो एंट्री पॉइंट है जहां से CO2 अंदर आता है या ऑक्सीजन अंदर आ सकता है, उस एंट्री पॉइंट पे आपने ऐसा एंजाइम रखा है जो सिर्फ CO2 से बाइंड करता है, ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करता है. और इसकी वजह से ऑक्सीजन यहां तक आ ही नहीं पाएगा, बंडल शीट सेल के पास आ ही नहीं पाएगा ऑक्सीजन. और जब ऑक्सीजन बंडल शीट सेल के पास आ ही नहीं सकता है, तो यहां पे जो केल्विन साइकिल परफॉर्म होती है, तो केल्विन साइकिल में कौन सा एंजाइम काम में आता है? रुबेस्को काम में आता है. रुबिस्को काम में आता है. तो रुबिस्को आपने याले सेल में रखा है, यहां तक तो ऑक्सीजन आने ही नहीं वाला है. ठीक है, तो ऑक्सीजन यहां पे आएगा नहीं, तो कभी भी रुबिस्को फोटो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा. समझ में आ रही बात?
बिकॉज आप C3 पाथवे पढ़ते थे, C3 पाथवे में क्या होता था कि यार सिर्फ रुबिस्को था, तो वो जब CO2 का लेवल कम हो जाता था तो ऑक्सीजन को फिक्स कर देता था। बट यहाँ पे आपने रुबिस्को को मेसोफिल सेल के नीचे की तरफ रखा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन कभी भी इसके पास नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जो एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट पे तो पैप केस है, और पैप केस तो ऑक्सीजन से बाइंड करता ही नहीं है, वो तो सिर्फ CO2 से बाइंड करता है। तो जितनी बार भी ये प्रोसेस रिपीट होगा, हमेशा पैप केस CO2 को ही अंदर डिलीवर करेगा, कभी भी ऑक्सीजन को डिलीवर नहीं करेगा। तो जो प्रॉब्लम कॉज होती थी ऑक्सीजन की वजह से, फोटो रेस्पिरेशन, वो प्रॉब्लम यहाँ पे अकर नहीं होगी। ठीक है। एक और बात, केल्विन साइकिल का जो प्रोसेस है, कार्बन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है, या फिर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में क्या होता है, देयर इज रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज होता है ना। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिलीज होगा केल्विन साइकिल में या फिर ग्लूकोज फिक्सेशन के टाइम पे, उस ऑक्सीजन को पायरुविक एसिड क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा, क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा, और पायरुविक एसिड उस ऑक्सीजन को लेके जाएगा कहां पे, मेसोफिल सेल में लेके जाएगा। कहां पे, मेसोफिल सेल में लेके जाएगा, बिकॉज अगर ऑक्सीजन को यहां पे रिलीज कर दिया तो रुबिस्को बाइंड हो सकता है ना, यू डोंट वांट दैट फोटो रेस्पिरेशन टू अकर। तो इसीलिए पायरुविक एसिड उस ऑक्सीजन को लेके आएगा मेसोफिल सेल में, ठीक है, और फिर वहां पे उस ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। ओके, और देयर इज गोइंग टू बी यूज ऑफ एटीपी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर गोइंग टू बी यूज्ड। मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है। एंजाइम कौन सा लिखा था, पेप्केस। ठीक है। सो जो पायरुविक एसिड जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी यूज करेगा, और यूज करने के बाद ऑक्सीजन का रिलीज होगा यहाँ से, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इट्स गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू पेप, इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू पेप। पूरी साइकिल हो गई कंप्लीट। ठीक है, क्या रिलीज होगा यहाँ पे, देयर इज रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन को आप यहाँ पे रिलीज नहीं कर सकते। देयर इज रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एज वेल एज देयर इज यूज ऑफ 2 ATPs। ओके, 2 ATPs किस तरीके से, ATP को यूज करेंगे AMP, है ना। ATP से अगर मैं एक फॉस्फेट को निकालता हूं तो क्या बनेगा, ADP बनेगा। ATP के पास कितने फॉस्फेट होते हैं, 3 फॉस्फेट होते हैं। तो अगर एक फॉस्फेट को आप बाहर निकालोगे तो ये ADP में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एक और फॉस्फेट को आप निकालोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा AMP में। ठीक है, मतलब अगर मैं ATP से AMP लिखता हूं, मतलब मैंने कितने फॉस्फेट यूज करे, 1 and 2 फॉस्फेट, मतलब मैंने 2 ATP यूज करे, मैं बोल सकता हूं। ठीक है, तो आपको याद रखना है देयर इज यूज ऑफ 2 ATP, बिकॉज मैंने यहाँ पे AMP दिखाया है। अगर मैं सिर्फ ADP दिखाता, मतलब देयर इज यूज ऑफ 1 ATP, बट when I write it AMP here, that means there is use of 2 phosphate। ठीक है, प्लस देयर इज रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है उसका नाम है फॉस्फोपायरुविक डाइकाइनेज, फॉस्फोपायरुविक डाइकाइनेज। ठीक है, और यहां पे एक और एंजाइम मुझे लिखना है, दैट इज मैलिक एंजाइम, दैट इज मैलिक एंजाइम। ठीक है, सो फॉस्फोपायरुविक डाइकाइनेज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो एंजाइम है, दिस एंजाइम इज कोल्ड सेंसिटिव, मतलब ये ठंडे टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकता है, लो टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकता है,
इट इज कोल्ड सेंसिटिव या फिर लो टेम्परेचर सेंसिटिव, ठीक है। और इसके वर्किंग के लिए Na+ इज रिक्वायर्ड। Na+ इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पे द होल इंटेंशन वाज कि आप सिर्फ CO2 को अंदर एंट्री दो, CO2 ही पहुंच पाए बंडल शीट सेल के पास, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाए, क्योंकि ये सिर्फ CO2 को अलाउ करेगा, ऑक्सीजन को नहीं करेगा। और जो ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, उस ऑक्सीजन को पायरुविक एसिड ट्रैप करके लेके आता है और बाहर रिलीज करता है। कहां पे? मेसोफिल सेल में रिलीज करता है, उसको अंदर रिलीज नहीं करता है, ठीक है। अभी आपको याद है कि जब आपने C3 पाथवे पढ़ा था, तो C3 पाथवे में वी डिड टॉक अबाउट कि मुझे अगर 1 CO2 फिक्स करना है, 1 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करना है, तो आई रिक्वायर 3 ATP एंड 2 NADPH। ये बात आपको पता होनी चाहिए। पर अगर मैं C4 पाथवे के थ्रू CO2 का फिक्सेशन करता हूं, इफ आई फिक्स CO2 बाय दिस C4 पाथवे, तो मेरे कितने ATP यूज हो गए? तो यहां पे केल्विन साइकिल तो आपको पता है, केल्विन साइकिल में 3 ATP यूज होते हैं, ये बात आपको पता ही है। प्लस 2 ATP आपके यहां पे यूज हो रहे हैं, तो टोटल कितने ATP यूज में आ रहे हैं? तो टोटल जो ATP यहां पे यूज में आ रहा है, दैट इज 5 ATP। दैट मीन्स अगर मैं C4 पाथवे के थ्रू 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को फिक्स करने की कोशिश करूं, तो आई रिक्वायर 5 ATP। 3 ATP केल्विन साइकिल के खुद के, यही 3 ATP आप कंसिडर कर सकते हो, और 2 ATP एक्स्ट्रा जो यहां पे काम कर रहे हैं। और NADPH का प्रोपोर्शन तो सेम रहेगा, NADPH का प्रोपोर्शन तो सेम रहेगा, ठीक है। मतलब अगर C3 पाथवे के थ्रू इफ आई वांट टू फिक्स 1 CO2, there is requirement of 3 ATP and 2 NADPH, while through C4 pathway if I want to fix 1 CO2, so I need to fix 5 ATP and 2 NADPH. Sorry, I need 5 ATP and 2 NADPH, ठीक है। तो अगर मैं C4 पाथवे के थ्रू ग्लूकोज बनाता हूं, ग्लूकोज दैट इज हाउ मेनी कार्बन? 6 कार्बन्स। अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है C4 पाथवे के थ्रू, तो 6 कार्बन चाहिए। एक कार्बन के लिए वी रिक्वायर 5 ATP, तो 6 कार्बन के लिए कितने ATP चाहिए हो गए? 30 ATPs and 12 NADPH। समझ में आ गया काउंट? कि जब C4 पाथवे के थ्रू आप 1 CO2 को फिक्स करते हो, तो आप 5 ATP और 2 NADPH यूज करते हो। तो उसी तरीके से अगर मैं 6 कार्बन फिक्स करूं, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन करूं, तो आई वुड बी रिक्वायरिंग 30 ATPs एंड 12 NADPH। यही काउंट अगर C3 के लिए लिखे अपन, आगे लिखा है अपन ने, बट फिर भी एक बार यहां पे लिखते हैं। इफ आई वांट टू फिक्स और इफ आई वांट टू फॉर्म ग्लूकोज थ्रू C3 पाथवे, हाउ मेनी ATPs आई वुड नीड? तो C3 में 1 कार्बन के लिए 3 ATP चाहिए होते हैं, तो 6 3s 18, I'll be requiring 18 ATPs and 12 NADPH, ठीक है। तो सी द डिफरेंस, अगर आप ग्लूकोज बनाते हो C4 पाथवे के थ्रू, तो आपको 30 ATPs रिक्वायरमेंट है, ओके, और 12 NADPH की रिक्वायरमेंट है। और C3 के थ्रू बनाते हो तो आपको 18 ATP की रिक्वायरमेंट और 12 NADPH की रिक्वायरमेंट है। प्लस यहां पे कोई भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। Never ever there is going to be photo respiration taking place in the C4 pathway, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज करके जो भी डिटेलिंग है पूरी आप यूज कर लो, ठीक है। नाउ एज यू कैन सी यहां पे कार्बन का फिक्सेशन कितनी बार हो रहा है? एक बार कार्बन को यहां पे फिक्स किया जा रहा है और एक बार कार्बन को यहां पे फिक्स किया जा रहा है, मतलब देयर इज 2 times फिक्सेशन टेकिंग प्लेस, ओके, या फिर कार्बोक्साइलेशन इज टेकिंग प्लेस 2 times, ठीक है। एंजाइम कौन सा यूज में आ रहा है?
तो पेप केस भी आ रहा है, रुबिस्को भी आ रहा है, ठीक है। CO2 एक्सेप्टर कौन है यहाँ पे? हु इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर एंड सेकेंडरी, ठीक है। फर्स्ट कार्बन कंपाउंड जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी द 4 कार्बन कंपाउंड, दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ठीक है, ओके। पेप जो है, पेप इज हाउ मेनी कार्बन कंपाउंड? तो ये आपको याद रखना है, पेप इज 3 कार्बन। RUBP कितना कार्बन था? RUBP वाज 5 कार्बन। लिख लेते हैं यहां पे, C4 एंड C3 की अगर बात करें तो C4 में जो कार्बोक्सिलेशन होता है, in C4 plants कार्बोक्सिलेशन या फिर कार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस कार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस 2 times, है ना। 1 in, एक बार कहां होता है? 1 in 1 time या फर्स्ट टाइम इन मेसोफिल सेल एंड सेकेंड टाइम इन बंडल शीट सेल, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट टाइम CO2 को एक्सेप्ट कौन करता है? द प्राइमरी एक्सेप्टर, प्राइमरी एक्सेप्टर इज पेप्को, ठीक है, एंड सेकेंडरी एक्सेप्टर इज रुबिस्को। प्राइमरी एक्सेप्टर इज पेप्को, द सेकेंडरी एक्सेप्टर इज रुबिस्को, ठीक है। जो सबस्ट्रेट यूज में आता है, द प्राइमरी सबस्ट्रेट, फर्स्ट टाइम जो सबस्ट्रेट रहेगा, प्राइमरी सबस्ट्रेट इज phosphoenol pyruvate, which is a 3 carbon compound. Phosphoenol pyruvate, which is a 3 carbon compound, ठीक है, and secondary substance is ribulose बिसफॉस्फेट। क्या है? रिबुलोज बिसफॉस्फेट। कितना कार्बन कंपाउंड है? दिस इज 5 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। और क्या याद रखना है? फर्स्ट प्राइमरी compound formed is oxaloacetic acid, which is how many carbon? It is a 4 carbon compound, ठीक है। और जो सेकेंडरी कंपाउंड फॉर्म हुआ है
phosphoglyceric acid, which is a 3 carbon compound. ठीक है, तो जो कैल्विन साइकिल है वो भी परफॉर्म करी जाती है C4 प्लांट्स में, ठीक है, बट ये जो प्रोसेस मैंने मेंशन किए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं. फर्स्ट टाइम जो फिक्सेशन होता है, कार्बन फिक्सेशन, कार्बोक्सिलेशन, वो मेसोफिल सेल में होता है. सेकेंड टाइम बंडल शीट सेल में होता है. जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो है पेप्को, और जो सेकेंडरी एक्सेप्टर है वो रुबिस्को. दिस इज कैल्विन साइकिल आई एम टॉकिंग अबाउट. द प्राइमरी सबस्ट्रेट जो काम में आता है, जहां जिसमें CO2 को फिक्स किया जाता है, दैट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट, दैट इज पेप. और सेकेंडरी सबस्ट्रेट जो है, जो केल्विन साइकिल में काम में आता है, दैट इज रिबुलोज बिसफॉस्फेट. ठीक है, जो प्राइमरी कंपाउंड फॉर्म होता है दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, एंड जो सेकेंडरी कंपाउंड फॉर्म होता है दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, अ 3 कार्बन कंपाउंड. ठीक है, सो दिस आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने. ठीक है, नाउ some of the features of the C4 plants. Important features of the C4 plants are, because they are the most evolved plants आप बोल सकते हो, क्योंकि उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, and this has developed through evolution only. So the important features. What are the important features? So one of the important features is they are tolerate to high temperature condition. They tolerate high temperature. ठीक है, दूसरा important point, photo respiration एब्सेंट है. क्यों एब्सेंट है वो बात मैंने आपको बता दी है. इनके अंदर हमेशा हाई CO2 लेवल इज मेंटेन. हाई CO2 लेवल इज मेंटेन्ड. ठीक है, जो ऑक्सीजन का रिलीज होता है वो कहां होता है? बंडल शीट सेल में होता है क्या? नहीं. ऑक्सीजन which is a product of photosynthesis, the product of photosynthesis, that is oxygen, is always released in mesophyll cells. It is always released in the mesophyll cell. They tolerate CO2 stress. C3 प्लांट CO2 स्ट्रेस नहीं टॉलरेट करता, और वो क्या करता? फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता था, फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा वहां पे. ठीक है, और क्या है? दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग CO2 एंजाइम पेप्को, which is a strong CO2 binding enzyme is present. ठीक है, then it also fixes the CO2 that has been produced through the process of respiration. CO2 evolved through respiration is also
फिक्स्ड, मतलब कभी CO2 की कमी होने ही नहीं वाली है, क्योंकि CO2 इवॉल्व हो रहा है रेस्पिरेशन के थ्रू, उसको भी ये प्लांट क्या करेगा, फिक्स करके फोटोसिंथेसिस कर देगा। एंड दे आर टॉलरेंट टू हाई सॉल्ट स्ट्रेस। हाई सॉल्ट स्ट्रेस, they tolerate हाई सॉल्ट स्ट्रेस। ठीक है, एक जो चीज लोग नहीं टॉलरेट कर पाते हैं वो है कैन नॉट टॉलरेट लो टेम्परेचर स्ट्रेस। तो रेड में लिखते हैं, कैन नॉट टॉलरेट लो टेम्परेचर स्ट्रेस। इज इट क्लियर, सिंपल एंड इजी? ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, टॉलरेट हाई टेम्परेचर्स। खासियत क्या है C4 प्लांट्स की, तो हाई टेम्परेचर्स को टॉलरेट कर सकते हैं, फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट है, हाई CO2 लेवल इज मेंटेन्ड। तो इसके लिए एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, CO2 इवॉल्व थ्रू रेस्पिरेशन इज ऑल्सो फिक्स्ड। इसकी वजह से क्या रहेगा, इसका जो CO2 लेवल रहेगा हमेशा हाई रहेगा। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस O2 इज ऑलवेज रिलीज्ड इन मेसोफिल सेल, दे टॉलरेट CO2 स्ट्रेस। और यहाँ पे जो पेप्को की अपन बात कर रहे थे, विच इज अ स्ट्रॉन्ग CO2 बाइंडिंग एंजाइम। ठीक है, एंड दे टॉलरेट हाई सॉल्ट स्ट्रेस, दे टॉलरेट हाई सॉल्ट स्ट्रेस। एंड जो चीजें टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, दैट इज दे कैन नॉट टॉलरेट लो टेम्परेचर स्ट्रेस। क्योंकि जो एक एंजाइम मैंने आपको बताया था, दैट इज फॉस्फोपाइरुवेट डाइकाइनेज, है ना, जो आपने विच वॉज अवेलेबल इन दी मेसोफिल सेल, वहां पे अपन लिखा था इट इज नॉट एबल टू टॉलरेट लो टेम्परेचर्स एंड इट इज कोल्ड सेंसिटिव। तो जिसके से अगर लो टेम्परेचर्स है या फिर काफी ज्यादा ठंडी है तो उसमें आपका C4 प्लांट ठीक से काम नहीं कर पाएगा। दैट इज द रीजन इट इज अवेलेबल इन द ट्रॉपिकल रीजन्स एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन्स। ठीक है, दैट इज द रीजन इट इज अवेलेबल इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। ठीक है, नाउ यहाँ पे मैं एक पॉइंट जो है दैट इज टॉलरेट हाई सॉल्ट स्ट्रेस। तो हाई सॉल्ट स्ट्रेस को किस तरीके से टॉलरेट करेगा ये प्लांट, तो लेट्स सी। अभी आपने जो C4 साइकिल देखा उसके अंदर देयर लॉट ऑफ एसिड्स बीइंग फॉर्म्ड, है ना। तो लेट्स से ग्रास कंसिडर करें, ठीक है। तो जो सॉइल है, इफ सॉइल के अंदर काफी ज्यादा सॉल्ट है, ठीक है, there's a lot of salt in soil. Because of this, concentration of soil increases, है ना। और सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन क्या रहेगा सॉइल में, काफी कम रहेगा। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल इज गोइंग टू डिक्रीज। Water potential is going to decrease because concentration of salt is very high, water potential कम हो जाएगा। But जो C4 plant है, when it performs the C4 pathway during C4 pathway, a lot of acids are produced. During C4 pathway, a lot of acids are produced. These acids increase the solute concentration of C4 plant। ठीक है, तो जितनी बार भी C4 पाथवे फॉलो होगा तो काफी सारे एसिड्स का प्रोडक्शन होता है।
acids are produced. This acids increase the solute concentration of the C4 plant. और उसका solute concentration इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि अगर आप दोनों का water potential compare करो तो इसका water potential compared to इसका water potential is going to be high. ठीक है, अगर आप solute concentration compare करो तो यहाँ पे जो solute है यहाँ पे सॉल्वेंट काफी कम है, ठीक है, C4 प्लांट्स के अंदर। और सॉल्टी जो सॉइल है उसके अंदर क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो कंपैरेटिवली सॉल्यूट कम है और प्लांट के कंपैरेटिवली सॉल्वेंट ज्यादा है। तो अब क्या होगा, बट ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल इन एब्सॉर्बिंग द वाटर। तो सॉल्वेंट क्या करेगा, अपने हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट की तरफ जाएगा एंड दस प्लांट इज एबल टू टॉलरेट हाई सॉल्ट कंडीशंस। मतलब जो C4 प्लांट है उनको आप सॉल्टी सॉइल में भी अगर ग्रो करोगे ना, दे कैन इजीली ग्रो एंड एब्सॉर्ब वाटर आउट ऑफ इट। ओके, किस तरीके से एब्सॉर्ब कर पाएंगे, बिकॉज of the C4 pathway a lot of acids are produced in the plant. तो उन एसिड की वजह से प्लांट का सोल्यूट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कंपैरेटिवली सॉइल के सोल्यूट के कंपैरिजन में कि उनके अंदर सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन या फिर वाटर पोटेंशियल की आप बात करो तो वाटर पोटेंशियल काफी कम रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाटर पोटेंशियल दैट इज साइड W इज लेस, और यहाँ पे साइड W क्या है, साइड W इज मोर। और आपको तो पता ही है कि यार जो वाटर है अपने हायर वाटर पोटेंशियल से मूव करता है लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ, तो वाटर आपके C4 प्लांट एब्सॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी एक अच्छी बात, ये तो बात हो गई अपनी कि सॉल्ट कंडीशन में किस तरीके से काम कर रहा है। दूसरी एक अच्छी बात ये है कि यार जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर ज्यादा लाइट इंटेंसिटी हो जाती है तो स्टोमाटा बंद हो जाता है टू अवॉइड ट्रांसपिरेशन। तो जो CO2 वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है थ्रू रेस्पिरेशन, अब उसको बाहर से CO2 लेने की जरूरत नहीं है, उसके स्टोमाटा बंद हो चुके हैं क्योंकि लाइट इंटेंसिटी काफी ज्यादा थी। तो जो CO2 वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन, वही CO2 को यूज करके क्या कर सकता है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दी प्लस पॉइंट। और एक और प्लस पॉइंट क्या है, ऑक्सीजन जो रिलीज होता है, जो भी प्रॉब्लम कॉज हो रहा था दैट वाज ड्यू टू हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड रुबिस्को, वो प्रॉब्लम C4 प्लांट में क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आपने एक और एंजाइम को इंट्रोड्यूस किया दैट इज मोर पावरफुल अट्रैक्शन टुवर्ड्स CO2। तो अगर आप रुबिस्को को CO2 देते हो और ऑक्सीजन देते हो तो रुबिस्को CO2 के कम लेवल में ऑक्सीजन से बाइंड हो सकता है। बट यही चीज आप पेप्को की बात करो तो पेप्को को अगर आप CO2 का लेवल कम भी दो और ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा भी दो, वो सिर्फ CO2 से बाइंड करेगा, ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो लेवल है, जो पोर्शन है जहां से इनटेक होता है गैसेस का, दैट इज अ मेसोफिल सेल, वहां पे आपने कौन से एंजाइम को रखा है, वहां पे आपने रखा है पेप्को को। तो पेप्को सिर्फ CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, बाइंड करेगा और उसको डिलीवर करेगा कहां पे, बंडल शीट सेल में डिलीवर करेगा। ऑक्सीजन वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा बंडल शीट सेल तक। और जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है फोटोसिंथेसिस वाले केस में, ओके, वो ऑक्सीजन कहाँ रहेगा, वो ऑक्सीजन जो बंडल शीट सेल में प्रोड्यूस हुआ है उसको पायरुविक एसिड अपने साथ लेके कहाँ रिलीज करेगा, मेसोफिल सेल में रिलीज करेगा। मतलब जो बंडल शीट सेल है जहां पर रुबिस्को प्रेजेंट है, वहां पे ऑक्सीजन को प्रोवाइड ही नहीं किया जाएगा, और अगर प्रोड्यूस भी हो रहा है वहां पे ऑक्सीजन तो उसको पकड़ के ले जाके कहाँ रिलीज किया जाएगा, मेसोफिल सेल में, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि आप फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड कर रहे हो, आप फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। सो द होल आइडिया ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ द C4 पाथवे इज टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। क्योंकि आपने प्रीवियस लेक्चर में एक लाइन लिखी थी कि फोटो रेस्पिरेशन से प्लांट की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होना चाहिए। तो यस, उसीलिए फोटो रेस्पिरेशन ना हो, इसलिए प्लांट्स ने अपने आप को डेवलप किया और C4 पाथवे बनाया। तो C4 पाथवे में आपको कभी भी फोटो रेस्पिरेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द C4 पाथवे टुडे, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक
अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना, अच्छे से नोट्स बनाना, और जब आपकी नोट्स बन जाए तो आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट्स आप मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। चलो बाय बाय।